Greetings everyone, this is Sharda, your ELGA teacher from Bal Bharti Vidyapeeth School, Gohana. In our previous video of ELGA, we had discussed the third component of ELGA, which is reading and listening comprehension. There we read the first story of the Unit 1, which was The Liberator. And here in this video, we are going to read the next story of Unit 1. Let's check the name, which is South Africa's Hero. It means there was a person who was considered as a hero. Of which country? South Africa. And the story is written by Komal Ramchandani. Who has written the story? Komal Ramchandani. Now, let's read the story, and before reading the story, let's take a look of some vocabulary words. And the first word is colonized. Means settle in a place and take control over the place. किसी एक जगह पे सेटल हो जाना और उस जगह पे अपना कंट्रोल ले लेना. जैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में बिजनेस के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने लास्ट में क्या किया, वो यहीं पे सेटल हो गए और इंडिया पे अपना कंट्रोल कर लिया. इट मीन्स दे कॉलोनाइज्ड इट. नेक्स्ट इज सेपरेटली. मीन्स नॉट टुगेदर, मीन्स दे आर सेपरेट, अलग हैं वो. सर्वेंट, अ पर्सन हु परफॉर्म्स ड्यूटीज फॉर अदर्स, मीन्स जो दूसरे लोगों का काम करते हैं, सेवक. इक्वालिटी, द स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल और सेम, समानता. जब चीज़ें इक्वल होती हैं देन वी कॉल इट इक्वालिटी. जब सबको सेम राइट्स दिए जाते हैं, सबको एक जैसा ही ट्रीट किया जाता है. नेक्स्ट इज बायकॉट, दैट इज रिफ्यूज टू कॉपरेट. जब हम किसी को कॉपरेट करने से मना कर देते हैं, किसी के रूल्स को मानने से मना कर देते हैं, या उनकी बनाई हुई चीज़ों को यूज़ करने से मना कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बायकॉट. नेक्स्ट इज एबॉलिश्ड, टू पुट एन एंड टू समथिंग. किसी चीज़ को ख़त्म कर देना मीन्स उसका एंड कर देना. फॉरगिवनेस, द प्रोसेस ऑफ फॉरगिविंग, मीन्स क्षमा करना या माफ़ कर देना. I hope these vocabulary words are clear to you, and these words will help us to read the story carefully and we can better understand the story. Let's start the story. The Dutch means people from Holland. Holland is a country and the people from Holland are called Dutch, as we are from India and we are called Indians. So the people from Holland are called Dutch. And the British, as you all know, Britishers, right, had colonized South Africa. Means South Africa पर हॉलैंड के लोगों का और ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था. Many black South Africans, बहुत सारे ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स were फोर्स्ड किए गए अंडर देयर कंट्रोल, उनके कंट्रोल में. ओवर द ईयर्स, जैसे जैसे समय बीतता गया, देयर वॉज अपार्थाइड. हियर वी हैव वन न्यू वर्ड, दैट इज अपार्थाइड. एंड apartheid means the whites and non-whites having different rules. As we all know, the people from British are whites, right? And let me tell you, the people from South Africa are with black skin. So they were given different rights, right? And they had different rights, that's why there was apartheid. Okay, in South Africa. The word apartheid means the whites and non-whites having different rules. Whites और non-whites के अलग अलग rules थे. The blacks could not vote. As you know, here in India, if a person is more than 18 or 18, that person has a right to vote.
But in South Africa, blacks were not given this right of voting. They had to live separately from the whites. उनको वाइट लोगों से अलग रहने के लिए ही कंपेल किया जाता था, मतलब वो अलग ही रहते थे. The black people were in majority. ब्लैक जो पीपल थे, ब्लैक लोग थे, वो मेजॉरिटी में थे, मीन्स संख्या में ज़्यादा थे. बट दे हैड नो राइट्स, बट फिर भी उनके पास कोई राइट्स नहीं थे. द ब्लैक्स हैड पुअर स्कूलिंग. उनको स्कूल जाने के, बहुत कम लोगों को ही स्कूल जाने का मौका मिलता था. एंड पुअर हाउसिंग, और उनके पास बहुत अच्छे घर भी नहीं थे. दे कुड वर्क ओनली, वे सिर्फ काम कर सकते थे एज सर्वेंट्स, एक सर्वेंट की तरह, एक सेवक की तरह ही. मंडेला वर्कड फॉर जस्टिस. जस्टिस मीन्स न्याय. मंडेला जी ने न्याय के लिए काम किया. ही वॉज वर्किंग इन अ लॉ ऑफिस. वो एक लॉ ऑफिस में काम करते थे. ही बिकेम प्रेसिडेंट. वे प्रेसिडेंट बने ऑफ अ पार्टी, एक पार्टी के. फाइटिंग फॉर इक्वालिटी, जो समानता के लिए फाइट कर रही थी, मीन्स इक्वालिटी के लिए फाइट कर रही थी, बिकॉज ब्लैक्स को उनके राइट्स नहीं दिए गए थे. मंडेला वॉज अरेस्टेड. अरेस्टेड मीन्स जब पुलिस किसी को पकड़ लेती है, अरेस्ट कर लेती है कोई इलीगल काम करने के लिए. सो मंडेला वॉज अरेस्टेड मैनी टाइम्स. मंडेला जी को बहुत बार अरेस्ट भी किया गया. बट ही कंटिन्यूड, बट परंतु ही कंटिन्यूड, उन्होंने कंटिन्यू रखा क्या? फाइटिंग्स फॉर द राइट्स ऑफ नॉन वाइट्स. नॉन वाइट्स के राइट्स के लिए, अधिकारों के लिए अपनी लड़ाई जारी रखी. ही बिलीव्ड, वे मानते थे, एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड इक्वली. वो ऐसा मानते थे कि हर इंसान को सेम, एक जैसा ही ट्रीट किया जाना चाहिए. मंडेला वॉज वंस कॉट एंड फाउंड रिस्पॉन्सिबल. मंडेला वॉज वंस कॉट, एक बार उनको पकड़ा गया. किसको? मंडेला जी को. एंड फाउंड, और पाया गया. व्हाट? रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्राइंग टू ब्रिंग, दोषी किस चीज का? ट्राई करने के लिए, टू ब्रिंग द गवर्नमेंट डाउन, गवर्नमेंट को, सरकार को नीचा दिखाने के लिए. ही वॉज सेंट टू प्रिजन. प्रिजन मीन्स जेल. उनको जेल भेज दिया गया. मंडेलाज लाइफ इन प्रिजन वॉज हार्ड. मंडेला जी की लाइफ जो है जेल में बहुत मुश्किल थी. ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, समय के बीतने के साथ, मंडेला बिकेम, मंडेला जी बन गए, अ लीडर, एक नेता, अमंग द प्रिजनर्स, मीन्स उन कैदियों के बीच में भी वो नेता बन गए. ही डिमांडेड राइट्स फॉर द प्रिजनर्स. उन्होंने कैदियों के अधिकारों की डिमांड की. इट मीन्स वहाँ पे कैदियों को भी उनके राइट्स नहीं दिए गए थे, उनके अधिकार नहीं दिए गए थे. उनके अधिकारों के लिए भी मंडेला जी ने फाइट शुरू की. नेक्स्ट इज मंडेला's family and friends led protests and boycotts. मंडेला जी के परिवार ने, उनके फ्रेंड्स ने प्रोटेस्ट, विरोध स्टार्ट कर दिया. एंड बायकॉट्स मीन्स ब्रिटिशर्स को और द डच, उनको, डच पीपल को और ब्रिटिशर्स को, उनके रूल्स को, उनके बनाए हुए सामान को उन्होंने बायकॉट करना शुरू कर दिया. दे वर्कड आउटसाइड द कंट्री. उन्होंने अपने देश से बाहर भी काम करना शुरू किया. टू मेक मंडेला स्ट्रगल नोन एवरीवेयर. मंडेला जी का जो स्ट्रगल था, वो फाइट कर रहे थे सबके राइट्स के लिए, इक्वालिटी के लिए, ताकि पूरा वर्ल्ड उनके इस फाइट के बारे में, इस स्ट्रगल के बारे में जाने. मंडेला हैड इंस्पायर्ड पीपल टू डिमांड एन एंड टू अपार्थाइड. मंडेला जी ने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया, किस लिए? अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए. अदर कंट्रीज प्रेशर्ड साउथ अफ्रीका टू गिव अप अपार्थाइड.
जो दूसरे देश थे उन्होंने साउथ अफ्रीका पे प्रेशर बनाया कि वो अपार्थाइड को ख़त्म कर दें। लोकली ब्लैक्स एंड वाइट्स लेड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। और फिर क्या हो गया कि जो वाइट्स थे उन्हें भी, जिनको लगता था अपार्थाइड गलत है, उन्होंने भी और ब्लैक्स ने भी प्रोटेस्ट, विरोध शुरू कर दिए अगेंस्ट द गवर्नमेंट, सरकार के खिलाफ। फाइनली और अंत में अपार्थाइड वॉज अबॉलिश्ड, अपार्थाइड को हटा दिया गया इन साउथ अफ्रीका में इन 1991 में वहाँ से अपार्थाइड को अबॉलिश कर दिया गया, हटा दिया गया। मंडेला स्पेंड मोर देन 25 years इन जेल। मंडेला जी ने 25 साल से ज़्यादा जो हैं वो जेल में ही बिताए। ही फॉट, वे लड़े, टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ पीपल, लोगों के जो लिविंग थी उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए उन्होंने लड़ाई की। हु वर सफरिंग फ्रॉम इनजस्टिस, जो अन्याय से सफ़र कर रहे थे, अन्याय से लड़ रहे थे, मीन्स जिनको राइट्स नहीं दिए गए थे उनकी लाइफ्स को अच्छा करने के लिए उन्होंने फाइट की। ही वॉज ग्रीटेड एज अ हीरो, और उनको एक हीरो के रूप में ग्रीट किया गया, मीन्स उनको एक हीरो मान लिया गया। ऑन हिज रिलीज, मतलब जब उनको जेल से छोड़ा गया तो लोगों ने उन्हें एक हीरो की तरह ट्रीट किया। इन 1993 में ही वॉज अवार्डेड, उन्हें अवार्ड दिया गया द नोबल पीस प्राइज फॉर हिज वर्क, उनके कामों के लिए उन्हें 1993 में नोबल पीस प्राइज अवार्ड दिया गया। इन अप्रैल 1994, अप्रैल 1994 में साउथ अफ्रीका इलेक्टेड नेल्सन मंडेला एज द कंट्रीज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। नेल्सन मंडेला जी को 1994 में साउथ अफ्रीका ने अपना पहला ब्लैक प्रेसिडेंट चुना। इट मीन्स उससे पहले साउथ अफ्रीका में कोई भी ब्लैक प्रेसिडेंट नहीं बना था। ही ब्रॉट पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस मतलब अलग अलग, जैसे वाइट्स थे, नॉन वाइट्स थे, है ना, ब्लैक्स जो थे, तो अलग अलग लोगों को एक साथ लेकर आए वो, वाइट्स एज वेल एज नॉन वाइट्स टुगेदर, वो वाइट्स और ब्लैक्स को एक साथ ले आए। मैनी ब्लैक्स डिड नॉट अग्री, और बहुत सा, अब क्या हुआ, अब उल्टा हो गया। मैनी ब्लैक्स, बहुत सारे ब्लैक्स, डिड नॉट अग्री, उन्होंने सहमति नहीं दी, टू दिस, इससे, एंड डिसलाइक द आइडिया, और इस आइडिया को उन्होंने डिसलाइक कर दिया, नापसंद कर दिया। बट मंडेला बिलीव्ड इन प्रमोटिंग अ मैसेज ऑफ फॉरगिवनेस एंड इक्वालिटी, लेकिन मंडेला जी क्या मानते थे, एक मैसेज स्प्रेड करने में, प्रमोट करने में, क्या, क्षमा कर देने का और समानता का, वो समानता को आगे रखते थे, इसीलिए उन्होंने अपार्थाइड के अगेंस्ट अपनी फाइट की और लोगों को उनके राइट्स दिलवाए। ओके, सो दिस इज डन फॉर दिस स्टोरी। आई होप you understood the story in a better way. Thanks for watching, students. Bye.